The Malakpur relief camp in Shamli district, about 100 kilometers from the national capital. Shamli was one of the epicenters of the September riots, which tore through western Uttar Pradesh. Now it is the site that houses the largest number of displaced people and has also seen the maximum number of deaths in the past 1 month. One almost every day. Of the 34 dead, 25 were infants, all under a month old. 3 months after the riots, close to 18,000 people are still huddled in camps, 4,500 in the Malakpur camp alone. On this week's episode of Inside, we are going to take you to the life of a Muzaffarnagar riot victim. We're going to spend the day here in the Malakpur relief camp in Shamli in Uttar Pradesh. It's about 6 in the morning now. It's a cold winter morning surrounded by fog, mist and hundreds of refugees housed in tents around me. It's over 3 months after rioting in Muzaffarnagar and Shamli districts. The men and women were hounded out of their homes. And even today, their battle continues. The days and nights at the relief camps have only taken them to the next part of their gruesome ordeal. Rows of tents is what they now call their home. And no matter how warm a tent might be for a while, the battle against the winter dew and damp is constant. Fighting the biting cold is now almost a daily mission. In the mornings, young children begin the day by gathering dried sugarcane leaves to keep them warm. Children as young as 5 years then get down to doing the daily chores instead of going to schools. For the families, the dark and haunting memories of the riots that broke on August 27 are still raw. While the loss in the clashes still pains them, the tragedy that occurs each day in these deceptive camps is only adding to the agony. This is the grim reality in the camps here. Over 5,000 people living in 700 tents, stricken by poverty and misery. Each family here has their own story to tell. We are now going to talk to 22-year-old Firdaus, who lost her husband to the riots. She has 3 young children to feed and is now looking for ways and means to make ends meet. फिरदौस जी नमस्ते। नमस्ते। आप ये आपका टेंट है ना जी। आप कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? जी 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया जी। आपके परिवार में कौन कौन है? जी 3 बच्चे हैं, एक मैं हूँ। 3 बच्चे हैं जी। और तीसरा बच्चा कहाँ गया? वो जी स्कूल जा रहा है। स्कूल में जा रहे हैं या मदरसा जा रहे हैं? मदरसे। स्कूल में कोई जा रहे हैं आपके बच्चे? नहीं जी। नहीं जा रहे? नहीं। अच्छा, आपके पति? जी मैं उठा लिए, काम पर जा रहे थे, मैं रास्ते में तो उठा लिए, घर पर नहीं आए। हाँ, ये हादसा कैसे हुआ था? ये जो मुजफ्फरनगर में उस दिन जो राइट हुआ था, तब क्या हुआ था आपके पति के साथ? जी मैं तो रोटी बंद किया और मेरे से लेकर काम पर चले गए। अब काम पर सब वापसी नहीं आए। जब मैंने 1-2 दिन बाट देखी, फिर मैं देख कर रिश्तेदारों में घूमी, वहाँ कहीं पे नहीं मिले। फिर मैं सोरम गई खल्ला के पास, वहाँ जाकर देखा, वहाँ भी नहीं मिले। फिर मेरे अपने खल्ला के साथ मैं यहाँ पर आ गई कैंप में। जब नहीं मिले, मैं 3 बच्चों को लेकर अपने यहाँ आ गई कैंप में। आज भी मुझे कहीं नहीं मिले। पति आपके लापता है या उनके साथ कुछ हुआ है? लापता जी में, उनका कुछ पता नहीं है अभी। तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ है उसके साथ? बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं ख़त्म ही हो गई जी। जब कोई पता नहीं है, खबर नहीं है, सारे में खबर ले ली, कहीं नहीं मिले अभी। Her children are Firdaus's only hope now. But the count of infant deaths have rattled her, adding to her fears. The lack of even basic amenities and the deep winter chill adding to her woes. आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिरदौस जी, आप अपना टेंट दिखाएंगे हमें? हाँ जी, देखो अंदर जाकर।
यहीं पे आप 3 लोग रहते हैं? जी 3 नहीं 4? 4। अच्छा, जी यहीं पे सोते हैं? जी। अच्छा, यहीं पे अभी सोते हैं। जो सोने अभी ये जो टेंट है आपके, जी इसमें आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है? जी ठंड पड़ती है, ओस पड़ती है, हाँ। रजाई भी भीग जाती है जी। अगर यहाँ पल नहीं आ जी, ऐसे जो पानी थम जा, बारिश आया सारा पानी अंदर भर जाता है और जी पल पे सारा टपर टपर रहता है, कोई कपड़ा ऐसा नहीं जो गीला नहीं होता। अभी आप यहाँ पे जो इतना ज्यादा ठंड है जी कंबल आपको सिर्फ एक कंबल मिला जी सरकार से? जी, एक कंबल मिला सरकार की तरफ से। 4 लोगों के लिए एक कंबल? जी 4 लोगों के लिए एक कंबल सरकार ने दिया है जी। उसमें पाँव भी नहीं ले लगते, ओस पड़ती है, ठंड लगा है बहुत ज्यादा। 3 बच्चे, एक का तो नमूनिया हो रहा। अच्छा जी, एक का बुखार हो रहा था। कल मेरी भी तबीयत खराब हो रही थी। मेथी में जाती हूँ, मजदूरी करती हूँ, परेशान हूँ। और पानी का क्या इंतजाम है? जी पानी का यह है, बहुत दूर जाना पड़ता है और वहाँ भी घंटे घंटे हो जाता है खड़े खड़े। अब लाइन में लग कर देता है, कोई धक्का मुक्की करता है, लड़ाई बजती है तो पानी का नंबर भी लेट आता है। और टॉयलेट लेटरिन कैसे जाता है, नहाना धोना? जी उनकी बहुत परेशानी है। 2 रुपट्टे लगाते हैं आपस में, एक इंगे से जब जाकर नहाना पड़ता है। अच्छा जी, लैट्रिन को वैसे भी परेशानी इतनी बहुत ज्यादा, खेत वाले मारते हैं अगर जाते हैं खेत में तो ऐसे ही कुछ करके। खेत वाले मारते हैं? जी मारा है यहाँ पे? हाँ, नुको यहाँ ना बैठो, मारेंगे, यहाँ से भगाएंगे, नु करेंगे वो करेंगे। आप खेत में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट के इंतजाम सरकार ने नहीं की? जो यहाँ पे लेटरिन ऑलरेडी इन लोगों ने, जो यही के लोगों ने जो बनाया वो तो काम नहीं करता? नहीं जी, पूरा भरा हुआ, इतने लोग हैं, वहाँ से जगह ही नहीं मिलती जी। लाइन में खड़े खड़े भी जगह नहीं मिलती, भागना पड़ता है। खेत में जा तो ये मारते हैं खेत वाले। As the day moves ahead, there is little to look forward to. But the members of this relief camp desperately await the ration that some NGOs supply to them. Betrayed by their government, these supplies are all they can bank on to pull through the harsh winter. It's about 1:15 p.m. now. The people from these makeshift tents are busy cooking their meals. According to the women folk here, the ration and other bare essentials comes from NGOs and religious charities, and nothing really comes from the government. There are different accounts of what sparked off the violence. Was it a road accident that took a communal color? Or was it a case of harassment of a Jat girl by a Muslim youth, as some claim? Whatever the cause, the hostility had been long simmering. Rioting continued until early September. The curfew was lifted only on September 17, by which time many had fled their villages in fear. And since then, for many, life has changed. आपका नाम क्या है? मुशर्रत। मुशर्रत, आप जो खाना बना रहे हैं, हाँ। आपको कहाँ से मिल रहा है ये राशन? ये राशन मुझे बाहर वाले दे रहे हैं, जो हमारे मुसलमान भाई है अपने, वो बाहर से ला के दे रहे हैं। आपको सरकार से कोई राशन मिल रहा है? नहीं, सरकार से कुछ राशन नहीं मिल रहा। सरकार से कुछ भी राशन नहीं मिल रहा है? नहीं। तो फिर सरकार से क्या मिल रहा है आपको? सरकार की तरफ से सिर्फ दूध तो आ रहा है जी। कितना दूध मिल रहा है आपको? 250 ग्राम। 250 ग्राम एक आदमी के लिए या एक परिवार के लिए? पूरे परिवार के लिए। जैसे एक परिवार में अगर 10-12 लोग हैं या 5-6 लोग हैं, हाँ। इतने लोगों को सिर्फ 250 ग्राम दूध? नहीं, पूरे परिवार में 250 ग्राम दूध है। ओहो। सारे परिवार में, जैसे हमारे छोटे मोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सब में सिर्फ 250 ग्राम दूध। तो जैसे बाहर से आपको ये राशन मिल रहा है, अगर ये आना खत्म हो जाएगा तो फिर आपको क्या दिक्कत होगी? क्योंकि सरकार से आपको काम कुछ नहीं मिल रहा है ना? कुछ नहीं मिल रहा जी। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, राशन पानी कुछ नहीं। The situation on the ground is a human tragedy of enormous proportions. There are simply thousands of terrified, trembling, desperate people sitting in relief camps with the bare minimum facilities. जी 30-32 बच्चे यहाँ ठंड के लिए मर चुके हैं और ये हालात है, और भी बच्चे बहुत बीमार हैं। यहाँ से कोई सुविधा नहीं कर रही सरकार, और न दवाई न कुछ, और दवाई भी एक तरह की ही दे जाते हैं। वे अनिल गुप्ता अगर यहाँ आके एक रात झुग्गी में रह के जाएं, उनको मालूम हो जाए कि ठंड में मरते हैं कि जीते हैं, उनको मालूम हो जाएगा। हार से हमारा तो ये पोता गुजरा जी। ठंड की वजह से आपका ठंड पोता की वजह से गुजरा जी। कितने साल के थे? वे था जी 20-25।
दिन का 20-25 दिन का। उनका जन्म यहाँ पे हुआ? हाँ, जन्म ही हुआ जो उसका। जन्म भी यहीं पे हुआ, मरा भी यहीं पे। जन्म भी यहीं पे हुआ और मरा भी यहीं पे। ठंड की वजह से नमूनिया पड़ के मरा हो। लड़की बतावेगी जी मेरी। आपकी लड़की कैसे हुआ ये? ठंड के वजह से नमूनिया नमूनिया नहीं, ठंड लगी से, और उसकी डॉक्टरी भी करवाई और डॉक्टरी फोटोस्टेट भी है। यहीं पे गुजर गए वो? जी यही है। उनका उम्र कितना था? वो 4 साल। But as the tragedy at the relief camps unfolds, sounds of loud, racy Bollywood numbers resonate in the Chief Minister's hometown. At a time when the ruling Samajwadi Party is busy organizing their Sci-Fi Mahotsav extravaganza, and while the UP MLAs are busy going on junkets on taxpayers' money, the chilling fact here in this relief camp is that over 30 children have died out of cold, pneumonia, dysentery and other ailments. A large battalion of Bollywood stars are flown down to the remote location called Saifai for a mega Bollywood bash, all at the call of the state administrators. ये हमारे सैफई का महोत्सव है और जिसमें आगंतुक आए हैं उसे नमस्कार करने मैं गया था और सबका आदर करते धन्यवाद देते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इतनी भीड़ होते हुए भी महोत्सव अच्छी तरह से कामयाब हो रहा और हर दुकानदार ने कहा हमारी बिक्री बहुत अच्छी है, हर एक दुकानदार। The party continues all night with star after star performing to entertain the father-son duo. The revelry, when compared to the misery at the relief camps, appearing almost obscene, criminal. But to the state government, which did nothing when riots ripped through Muzaffarnagar, is once again busy having a gala time. Deaf to the cries of the thousands who put their faith in them. Now we are heading towards the burial ground along with these people. This burial ground is right there, just behind that relief camp. The near and dear ones of many people living here have been put to rest in that burial ground. This is no ordinary Indian tourist group. This bunch has flown all the way from Uttar Pradesh for a luxury multi-continent holiday. These are ministers from Akhilesh's cabinet. Seen here, basking in the Istanbul sun, taking and posing for photographs, luxury cars and personal guides, all at their disposal. No, they are not concerned about the plight of the riot victims. Yes, they are completely oblivious to the pain and suffering of the thousands of victims. And as the victims shudder under the winter cold in Muzaffarnagar, these legislators thought this was just the perfect time to take off for an international sojourn. ये परिपाटी रही है, परंपरा रही है संसदीय प्रणालियों का अध्ययन करने का। जिन देशों में हम जा रहे हैं वहाँ के प्रतिनिधि भी आते हैं, वहाँ के जननेता आते हैं।
हमारे लोकतंत्र का अध्ययन करने के लिए, तो उसी उद्देश्य से हम भी जा रहे हैं। सर वहाँ क्या क्या बातचीत होगा, क्या किन से मिलेंगे, क्या वो तो जानने पे वहाँ का प्रोग्राम है, वहाँ के डेलीगेट्स, वहाँ के जनप्रतिनिधि, इनसे भेंट होगी, वहाँ के संसदीय प्रणाली को हम लोग देखेंगे। सर ऑपोजिशन इल्जाम लगा रहे हैं कि ये एक यूरोप ट्रिप जाने का बहाना है, आपको क्या? एक चीज आप पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये पूछना चाहेंगे कि इसमें सरकार का कितना पैसा लग रहा है। हम लोग सब अपने पैसे से जा रहे हैं और सरकार का मात्र 55 या 60 लाख रुपए लगा है इसमें। तो एक ये चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कोई ऐसा नहीं कि 100-200 करोड़ का अपव्यय हो रहा है। और जितने भी माननीय विधायक जा रहे हैं सब लोगों ने अपने पैसे का अंशदान किया है। विदेश भ्रमण में नहीं जा रहे हैं हम लोग, कोई घूमने नहीं जा रहे हैं हम। वहाँ के कल्चर, वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ से कुछ गेन करने जा रहे हैं, एक खाली घूमने नहीं जा रहे हैं। सर कुछ दिन पहले भी कर्नाटका में ऐसे जंकेट पे जाया गया, वहाँ पे लोगों में हम लोगों ने दिखाया, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में गए, वहाँ पे लोग मजे कर रहे, लोगों पे ये सब लोगों के पैसे के बर्बाद ही बने जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग फॉर द एंटरटेनमेंट, वी आर गोइंग ओनली फॉर द सब स्टडी अबाउट देयर। What study will do, sir? Can you elaborate that? We can study about the political system, about their culture, about their how to वहाँ पे जो उन लोगों की सोच है, हम अपने इंडिया में उसको लाके अपने प्रदेश में लाके उस टेक्नोलॉजी से क्या बेटर कर सकते हैं। हमारा सिस्टम अच्छा है, उनका सिस्टम अच्छा है, तो उसको अच्छा सिस्टम जो हो उसको अप्लाई करके अपने उसको और प्रोग्रेस में ला सकते हैं। उसको भी बोला वो सही कहेगा, तुम तो नहीं इतनी बात। Now we are heading towards the burial ground along with these people. This burial ground is right there, just behind that relief camp. The near and dear ones of many people living here have been put to rest in that burial ground. इधर को 4 साल की बच्ची थी ये जो यहाँ दफनाई गई है इसी कैंप की, और सरकार कहती है कोई ठंड में बच्चा नहीं गुजरा। दूसरी ये रहे, ये किसके हैं? ये लड़के की है, अनवर का लड़का। हाँ, ये अनवर का लड़का है। कितने साल के? ये 20 दिन का बच्चा है, ठंड में गुजरा है जो। एक ये रहा, ये एक बच्चा ये है गुजरा हुआ यहाँ से, ये 1.5 महीने का है। ये 2-2.5 महीने का बच्चा ये है यहाँ जो गुजरा ठंड में। एक ये रहा, गिनते रहो कितने सरकार को झूठ बोलती है। हम बिल्कुल आंखों देखी दिखाया जा रहा है। हाँ ये कब्र है, ये झूठ नहीं हो सकती, आदमी जबान से झूठ बोल सकता है, ये कब्र तो झूठ नहीं बोल रही। उनके माँ बाप की आंखों देखो कैसे रो रहे हैं खड़े होके, क्या वे झूठ बोल रहे हैं कि उनके बच्चे नहीं गुजरे? जिस पर पढ़ते हैं उसको मालूम होता है, उनके गुजरे उन्हें मालूम है। ये आपकी बच्ची थी? हाँ। कितने साल की थी? 4 साल की थी। हाँ जी। कैसे हुआ? ठंड की वजह से या? हाँ जी, 2 तारीख में बुखार चढ़ा सा, रात को ठंड लग गया। मैं वजू कर रही थी शाम के टाइम, मगर बब्बो ज़्यादा लग रहा। जी हाँ मुझे ज़्यादा लग रहा, मगर चल छुट्टी आकर बैठ जा। मैं नमाज लगी पढ़न, फिर रोटी लगी पकाना, मुझे बिस्तर में लुटा दी इन बच्चों के दौरा। फिर उल्टी लगी उसका, कुड़िया दी, फिर मैंने उसका कुड़िया देगा, रात को लुटा और रखी। सुबह फिर उल्टी लगी, डॉक्टर का ले गए, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, यहाँ पर डॉक्टर नहीं था कोई भी। फिर हम वहाँ ले गए किराना। इस बच्ची की बहन है? हाँ जी, छोटी बहन? छोटी बहन। बड़ी सोनी थी। फिर हम डॉक्टर को ले गए, 2 डॉक्टरों को दिखाई, आराम नहीं लगा। दूसरी जगह का पर्चा लिख दिया। हमारे पास पैसा नहीं था जो हम कहीं अस्पताल में भर्ती कर देते। 3 तारीख की रात में 2:20 का दम दे दिया। उन्होंने जवाब दे दिया था हमारे तक ले जाओ। Many of the people do not want to return what was once their home. They say they fear for their lives. But the reality at these relief camps
has put these victims in a further fix. They are stuck, hounded out of their homes and left in the cold. Both hunger and death stalk these riot-torn men, women and children. And with an administration that remains blind and deaf to the plight of their own residents, there's little these victims ask of them now. Even amidst these troubles and tribulations, people here have been trying to forget their problems and find time for some pure entertainment. Let's go to one such gathering. जंतर मंतर अंगूठी ताबीज आपने बहुत खरीदे होंगे, सब नाली में फेंक दिए होंगे। 5 मिनट के लिए बाहर आएगा सिर्फ घड़ी के टाइम से। इसमें एक रूप लेकर आओ, शंकर के गले की माला। शंकर के गले में आप नहीं जानते क्या होता है? शंकर जी के गले में सांप होता है। लाओ सांप। ठहरो, लो सांप भी देखो। देखो शोर नहीं करना, सांप बन गया। अभी बाहर निकाल रहा हूँ। छोटे वाले नीचे बैठ जाओ। हम बाहर निकालेंगे, हमारे को कुछ कहोगे तो नहीं? किसी बहन भाई को डराओगे तो नहीं? अरे तेरे दूध पीने के लिए 10-20 रुपए जो बहन भाई अपने दिल से बुला कर देगा, दिए में कमी तो नहीं आएगी बेटा? कोई बनता काम बिगड़ेगा तो नहीं? बैठ जाओ छोटू, बैठ जा बेटा। ताली बजा के आवाज बंद करो। Back at the relief camps, evening is fast approaching. The cold is getting more and more extreme. And the fear that they may lose another child to this monster freeze has gripped the relief camp. They first claimed political conspiracy when confronted about the truth at these camps. They then claimed to have done it all to protect and safeguard these victims. But the appalling, downright pathetic condition of these victims reveals more than just the indifference of the state government. But thousands of them still haven't lost hope. They still await assistance and help. But will Akhilesh Yadav respond to their cries? While the sun sets here in the Malakpur relief camp, for the people out here, it's yet another night out in the cold. A relief camp bereft of any relief or comfort for its refugees. While the official apathy continues, the people here say life must go on.